Assalamu alaikum class. This is your online 15th lecture of applied physics, and in this lecture we will solve the circuits in which we need to apply Kirchhoff's current law. In the last two lectures we solved those circuits in which we need to apply Kirchhoff's voltage law, and in today's lecture we will solve the circuit by applying Kirchhoff's current law, and in this circuit we will have the dependent sources as well as in the last lecture we will have the dependent source. Okay, so let's see what's the question. This is example number 2.7 from your book. So this is find current I0 and and voltage V0 in the circuit. What we need to find, what we have been asked to find, we need to solve the circuit to find this current I0 and voltage V0 in the circuit. Okay, now let's move towards the circuit and see where is this current I0 and where is this voltage V0. So this is the circuit. This current is I0, which we need to find, and this voltage V0, which is across 4 ohm resistor. We need to find these two values, V0 and I0. Okay, now let's see the circuit. In this circuit, this is okay students. Again, अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है तो आपको अच्छे से याद होगा ये क्या सोर्स है और क्या वैल्यू है, डिपेंड कर रहा है, नहीं डिपेंड कर रहा है तो किस पे कर रहा है, नहीं कर रहा तो क्यों नहीं कर रहा. ओके, सबसे पहली बात तो देखें ये सर्कुलर शेप में नहीं है, सो दिस इज नॉट इंडिपेंडेंट सोर्स, मीन्स दिस इज डिपेंडेंट सोर्स. Okay, when a source is dependent, when we say the source is dependent, we must know that on which thing it is depending. Okay, if we know it is dependent, we must know that on which value of the circuit it is depending. Okay, now see the value of this dependent current source. As this is arrow, so this is current source, and as the shape is this, so this is dependent current source. Okay, now value is 0.5 I0. What is the value? 0.5 I0. so this current dependent, देखें वैल्यू क्या है हमारे पास 0.5 I0 है, तो किसी करंट I0 पे डिपेंड कर रहा है. सो दिस इज करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स. ओके, दिस इज 4 ओम रेजिस्टर जिसके अक्रॉस आपके पास पोटेंशियल है प्लस माइनस V0 और जिसके थ्रू करंट I0 फ्लो कर रहा है. और ये थर्ड कंपोनेंट हमारे पास सर्किट में क्या है, सर्कुलर शेप है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट सोर्स. एरो है, सो दिस इज इंडिपेंडेंट करंट सोर्स. दिस इज नॉट डिपेंडिंग ऑन एनी current or voltage of the component because its value is 3 ampere. This is arrow, this is current source, and this is in circular shape, so this is independent current source. Okay, so this is current dependent current source. This is 4 ohm resistor through which current I0 is flowing and has potential V0, and this is 3 ampere independent current source of 3 ampere value. Now what we need to find current I0 and voltage V0, which is lying here, so we need to find this again. ओके, देखिए अगर आप कहते हैं कि मैडम हमने जो लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जो लास्ट सर्किट सॉल्व किए थे, इन विच वी अप्लाइड KVL, वाई वी कैन नॉट अप्लाई KVL हियर, वाई वी आर सॉल्विंग द सर्किट्स बाय अप्लाइंग KCL. ओके, सी द सर्किट. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप मस्ट बी इक्वल टू 0. हमारे पास तो यहाँ इस पूरे सर्किट में दो लूप्स हैं, एक ये लूप और एक ये लूप. आपको पता है कि लूप होते हैं क्लोज पाथ, लेकिन उसमें वोल्टेज सिर्फ इस रेजिस्टर के अक्रॉस एग्जिस्ट कर रहा है. यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, यहाँ कोई वोल्टेज नहीं है, दे आर करंट सोर्सेज, सो हम इस पर KVL अप्लाई नहीं कर सकते. What we will do, we will solve the circuit by applying Kirchhoff's current law. ओके, नाउ आपको पता है, पहले पूछ लेती हूँ, बता देती हूँ कि KCL होता क्या है. एक्चुअली किरचॉफ्स करंट लॉ होता क्या है कि किसी भी नोड के करीब किसी भी नोड की तरफ आने वाला करंट और उस नोड से जाने वाला करंट बराबर होते हैं.
ओके नहीं तो हम क्या कहते हैं, किसी भी सर्किट की किसी भी नोड पे सारे करंट्स का सम इक्वल्स टू 0 हो नोड के ऊपर, जैसे ये नोड है, इस नोड पे सारे करंट्स का सम 0 होना चाहिए, ठीक है, मीन्स देयर शुड नॉट बी एनी करंट। ओके नहीं तो हम क्या कह सकते हैं, सम ऑफ ऑल द करंट्स, sum of all the currents moving towards the node must be equal to sum of all the currents leaving that node. Okay, sum of all the currents moving towards the node must be equal to sum of all the currents leaving that node, or sum of all the currents moving towards the node must be equal to sum of all the currents moving away from that node. नोड की तरफ जाने वाले करंट्स का सम नोड से दूर जाने वाले करंट्स के बराबर होना चाहिए। ओके, आई थिंक अब आपको KCL क्लियर हो गया है। सो हमारे पास इस सर्किट में कितनी नोड्स हैं? दिस इज ग्राउंड नोड, आपको पता है ये सर्किट का ग्राउंड टर्मिनल होता है। एक्चुअली हमारे पास ये एक नोड है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो मैंने उस तरह से नहीं दिखाया, लेकिन अगर आप देखें जैसे आप लैब में प्रैक्टिकल करते हुए रेजिस्टर्स या इस तरह से 2-3 रेजिस्टर्स जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें क्या है, आप यहाँ एक रेजिस्टर कनेक्ट किया, यहाँ किया, यहाँ किया, उन तीनों को आपने मिला रखा है इस लाइन से। सो दिस इज अ सिंगल नोड, ठीक है। ये अलग नोड, ये अलग नोड, ये अलग नोड नहीं है। ये तार यहाँ से जा रही है इस पॉइंट पे कनेक्ट, ये तार यहाँ पे जा रही है इस पॉइंट पे कनेक्ट, ये तार यहाँ से जा रही है और इस पॉइंट पे कनेक्ट। सो दिस इज अ कनेक्टेड सिंगल नोड, ठीक है, जहाँ पे आपका डिपेंडेंट करंट सोर्स, रेजिस्टर और इंडिपेंडेंट करंट सोर्स कनेक्ट हो रहे हैं, वो एक नोड ए है जिसमें हम किरचॉफ्स करंट लॉ मींस KCL अप्लाई करेंगे। सो नाउ अप्लाई KCL एट नोड ए, व्हाट वी गेट। अगर इस नोड पे अप्लाई करते हैं तो देखें इसकी तरफ जाने वाला करंट कौन सा है, दिस 1.5 I0, दिस 3 एम्पेयर ऑल्सो, और इसको लीव कौन सा करंट कर रहा है, दिस I0। सो sum of all the currents moving towards the node is 3 plus 0.5 I0, and the current leaving that node is I0. So sum of all the currents moving towards the node and sum of all the currents leaving that node, sum नहीं हो रहा क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक करंट है, हमने उसी को लिख दिया है। So simplify the equation by solving. We have I0 is equal to 6 एम्पेयर। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, आप इसको सॉल्व कर लें। सो दिस इज I0 is equal to 6 एम्पेयर। नाउ अगेन मूव टूवर्ड्स द सर्किट question. What we have to find, we need to find current I0 which we have already found. Now we need to find this V0, and this V0 is across the 4 ohm resistor, ठीक है। सो किसी रेजिस्टर से आपको वोल्टेज फाइंड करना है तो आप उस पर ओम्स लॉ अप्लाई करें, मीन्स V इज इक्वल टू IR। सो दिस V इज V0 इज इक्वल टू IR, मीन्स V0 इज इक्वल टू 4 इंटू दिस I0, और I0 हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। सो V0 is equal to 4 I0, and 4 into I0 is 6 ampere, so this is 24, 6 are 24, so this V0 is 24 volts। ओके, ये हमारा सर्किट ख़त्म हुआ है, मीन्स हम सॉल्व कर चुके हैं इसको। हमें I0 और V0 को फाइंड करना था, जो कि हम कर चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या किया, आप सबसे पहले नोड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उस नोड पे KCL लगाते हैं, उसकी तरफ जाने वाले करंट्स को एक तरफ लिखते हैं, उसको लीव करने वाले करंट्स को एक तरफ लिखते हैं, उनको सिंप्लीफाई करते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई और वैल्यू चाहिए होती है तो हम दोबारा सर्किट की तरफ जाते हैं, और उसमें से जैसे हमने यहाँ पे देखा कि V0 कहाँ पे था, 4 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस था। सो V इज इक्वल टू IR के अकॉर्डिंग हमने V इज इक्वल टू 4 I0 लिखा, V0 इज इक्वल टू 4 I0 हम फाइंड कर चुके थे। सो V0 इज इक्वल टू 24 volts। ओके, सो this was the question in which we have the dependent current source, and we solve the circuit by applying Kirchhoff's current law. Now let's move towards the other question. Okay students, this is your practice problem 2.7, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमारे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.7 में हमसे क्या कहा गया है, फाइंड V0 एंड I0 इन द सर्किट। ओके, अगेन हमें क्या करना है, V0 फाइंड करना है और I0 फाइंड करना है, कहाँ से, इस सर्किट से।
ओके जब एक सर्किट आपको दिया गया है और आपको कहा गया है कि आप ये फाइंड करें ये फाइंड करें, तो आप सर्किट में जाके सबसे पहले देखेंगे वेयर दीज values or these terms are. So where is I naught and where is V naught. I naught देखें, this is I naught. ओके ये तो कुछ और ही लग रहा है, लेकिन आप इसको नोट कर लें, दिस इज़ आई नॉट. ठीक है, थोड़ा सा आई और नॉट उसका मिक्स हो गया है, तो सो दिस इज़ आई नॉट. ठीक है, ये है आई नॉट बाई 4, आई नॉट डिवाइडेड बाई 4, इसको भी देख लें. ठीक है, और वी नॉट हमारे पास कहाँ है, वी नॉट है 8 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमारे पास वी नॉट है. ओके अगर आपने जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया है, सेम उसी पैटर्न पे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, कोई भी मसला नहीं आएगा. ठीक है, सब अगर आपके जहन में है पिछला क्वेश्चन, तो आपको पता है सबसे पहले हमने क्या किया था, नोड को आइडेंटिफाई किया था. ठीक है, फिर नोड को जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उस नोड पे हम केसीएल लगा देते हैं. केसीएल क्या होता है, उस नोड की तरफ जाने वाले करंट्स को एक साइड पे रखते हैं और इज इक्वल टू नोड की से आने वाले को लीव करने वाले करंट्स को एक तरफ लिख देते हैं. ठीक है, सो अभी हम क्या करेंगे, अब देखिए इसमें आपको नोड को कैसे पता चलेगा. अगर मैं कहती हूँ कि ये एक नोड है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह ही, ज़रा इसको हम कैसे देखते हैं, आप इसको ऐसे देखें. ठीक है, ये 6 एम्पियर का जो करंट सोर्स है, ये 2 ओम का रजिस्टर है, ये आई नॉट बाई 4 का डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और ये जो 8 ओम का रजिस्टर है. ठीक है, देखिए सर्किट में हमारे पास किस तरह से कनेक्टेड थे, ऐसे हमने क्या किया, बस हमने उन वायर्स को मोड़ के इस तरह से कनेक्ट कर दिया है. सर्किट की कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी भी कंपोनेंट के सर्किट के किसी भी कंपोनेंट के करंट या वोल्टेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ चेंज नहीं हुआ. सिर्फ हमने उसको दिखाया कि जैसे हम लैब में कनेक्ट कर रहे होते हैं उस तरह से कि एक्चुअली ये नोड एक है हमारे पास. ठीक है, ये सर्किट मैंने क्यों बनाया है, ताकि आपको पता चल जाए कि सर्किट में कितनी नोड है, कि ये कौन सी नोड है जिसमें हम केसीएल लगाएंगे, एक या एक से ज़्यादा है. सो दिस इज़ अ सिंगल नोड on which to which we will apply KCL. Okay, now if we apply KCL, अगर हम KCL अप्लाई करते हैं इस पूरी नोड पे, चूंकि ये एक है, तो देखें 6 एम्पियर वो करंट है जो नोड की तरफ जा रहा है, आई नॉट वो करंट है जो इस नोड को लीव कर रहा है, आई नॉट डिवाइडेड बाई 4 वो करंट है जो इस नोड को लीव कर रहा है. ओके देखें यहाँ पे आपकी चॉइस है, आप इस करंट को इस तरफ लेके जाना चाहिए, इस तरफ लेके जाना चाहें, लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस करंट को क्या करेंगे, हम इसको पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करा देते हैं. ठीक है, हम नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं लेते, वो वैल्यू आपको पता है जब नेगेटिव से एंटर होगा करंट तो हम माइनस में लेना पड़ता है, तो हम इसको क्या करते हैं, हम ले लेते हैं कि ये करंट यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहा है. अब आप कहेंगे कि मैडम देखिए यहाँ पे 6 एम्पियर एक करंट था, यहाँ पे आई नॉट था, यहाँ पे आई नॉट बाई 4, यहाँ पे क्या करंट है. ठीक है, तो आपको पता है रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, वोल्टेज गिवन है, तो आप करंट बाय ओम्स लॉ अप्लाई फाइंड कर सकते हैं. सो V इज इक्वल टू आई और आई इज इक्वल टू V ओवर आर, मीन्स यहाँ पे जो करंट है उसकी वैल्यू है V नॉट डिवाइडेड बाई 8. तो अगर आप इस पे अब KCL अप्लाई करते हैं तो आपके पास इक्वेशन क्या बनती है. ठीक है, 6 देखें वो करंट है जो टूवर्ड्स द नोड है, बाकी सारे करंट लीव कर रहे हैं. आई नॉट प्लस आई नॉट बाई 4 प्लस V नॉट बाई 8, जिस करंट की वैल्यू नहीं गिवन थी हमने इसको ओम्स लॉ अप्लाई करके V इज इक्वल टू आई आर एंड आई इज इक्वल टू V ओवर आर से ये वैल्यू लिखी है V नॉट बाई 8. ठीक है, ओके अब देखें अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये एक इक्वेशन है और आई नॉट और वी नॉट दो वेरिएबल्स हैं जिनको आपको फाइंड करना है. दो वेरिएबल्स हों एक इक्वेशन हो, हम सॉल्व नहीं कर सकते. तो अगेन वही बात जो मैं लास्ट 2 लेक्चर्स से बता रही हूँ कि आपको क्या करना होता है, आप सर्किट पे वापस जाते हैं, उन दोनों में से किसी एक ना एक वेरिएबल की वैल्यू आप सर्किट से फाइंड करते हैं. ठीक है, अब देखिए आई नॉट आपको पता है आप फाइंड नहीं कर सकते सर्किट को, वी नॉट देखें क्या है. दोबारा जाते हैं हम सर्किट के पास, सर्किट में V नॉट क्या है, V नॉट वो वोल्टेज है जो 8 ओम के रेजिस्टर के अक्रॉस है. अब देखें इस V नॉट को आप कभी भी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमें यहाँ का करंट ही नहीं पता. V इज इक्वल टू आई आर हम कैसे करेंगे जब हमें यहाँ का करंट ही नहीं पता. इसमें देखें क्या कर सकते हैं, गौर से देखें, जो 8 ओम का रेजिस्टर है वो आपके पास 2 ओम के रेजिस्टर के पैरेलल है. ओके है पैरेलल, तो आप क्या करेंगे बताएं. देखिए 8 ओम और 2 ओम का रेजिस्टर पैरेलल है. जब भी कंपोनेंट्स के रेजिस्टर्स के पैरेलल की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि उनमें वोल्टेज सेम है.
सो अगर 8 ओम और 2 ओम का रेजिस्टर आपस में पैरेलल है, आपको पता है अपर पोटेंशियल सेम, लोअर पोटेंशियल सेम, सो बोथ ऑफ दे आर पैरेलल. 8 ohm and 2 ohm resistor, both of they are parallel. So V naught is the potential difference, or is the voltage across 8 ohm resistor. As they are parallel, so this V naught will also here. ओके यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, V नॉट ही होगा क्योंकि पैरेलल है उसके. सो यहाँ पे जब हम देखें ये V नॉट ही है तो V इज इक्वल टू आई आर, तो I हमारे पास हो जाएगा आई नॉट, R हो जाएगी हमारे पास 2 ओम. सो V नॉट इज इक्वल टू 2 आई नॉट. ओके, इस इक्वेशन में हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, V नॉट इज इक्वल टू 2 आई नॉट. सही है, ये मैंने लिखा भी है कि चूँकि 2 ओम और 8 ओम का रेजिस्टर जो है वो पैरेलल है तो उनका वोल्टेज सेम है. सो V नॉट इज इक्वल टू 2 आई नॉट, और इसको हम अपनी इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे. ये आई नॉट प्लस आई नॉट बाई 4 प्लस 2 इंटू आई नॉट बाई 8, इस V नॉट की जगह पे हमने 2 आई नॉट पुट किया इज इक्वल टू 6. अगर आप इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी आई नॉट की, एंड दैट इज़ 4 एम्पियर. ठीक है, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी हैव द करंट आई नॉट एंड दैट इज़ 4 एम्पियर. अब हमें क्या करना है, चूंकि V नॉट भी फाइंड करना था, V नॉट हमारे पास है 2 आई नॉट, और इस आई नॉट की जगह पे अगर हम उस वैल्यू को फाइंड कर पुट करते हैं जो हमने फाइंड किया 4 एम्पियर, तो हमारे पास V नॉट इज इक्वल टू 8 वोल्ट्स आ जाएंगे. ठीक है, सो स्टूडेंट्स दिस वाज also the question in which we have the dependent source, and we applied KCL. Okay, so in the last lecture we solved those question in which we have dependent voltage sources and we applied KVL, and in today's lecture we applied KCL and we will have the dependent sources as well, current dependent current source. So this is how you can solve the circuits by applying KCL. Okay students, for I will again ask you people to practice the questions and solve relevant questions of the exercise so that you can have more practice. And if you people will practice, you can solve any of the circuit, and if you people will not solve any circuit or you will not practice, then you are not able to solve any of the question, any of the circuit. Okay, so student, this was all about KCL. Thank you so much.